लगा बिना बताए। I never forget that incident. मैं एक घटना को जो मेरे साथ घटी मैं कभी नहीं भूल सकता। His name was Sibu. उसका नाम शिबू था। He went to Kathmandu वो काठमांडू गया to enjoy his holidays. अपने हॉलिडे का आनंद उठाने के लिए। One day after sightseeing, और साइट सीन देखने के बाद में काठमांडू में he climbed on that fort and he saw that beautiful city. और वहां पर ऊपर चढ़ गया किले के ऊपर गुम्मट पे और खूबसूरत नगर को देखने लगा। After seeing that sight, he got down from that fort and he was walking on the और उस road. किले को देखने के बाद उस किले से नीचे उतरा और रोड में चल रहा He था। was walking towards his lodge. अपने जहाँ पर ठहरा हुआ तो उस होटल की ओर जा रहा था। Suddenly the earth began to shake. और अचानक एक भयानक भूकंप आया और वहाँ पे जमीन हिलने लगी। An earthquake struck that city. और उस शहर को भूकंप ने वहाँ पर अटैक किया। On seeing this, a Nepali young man, और ये नेपाली जो जवान था he rode his bicycle very fastly. वो अपनी साइकिल बहुत तेजी से भगा रहा था। Immediately the road in which he was riding his bicycle divided into a big crater. और जहाँ पे वो Valley like साइकिल भगा crater. रहा था और वो जो रोड थी जो जमीन थी वो फट गई। And with his bicycle he fallen into that और crater उस साइकिल सहित वो अंदर जमीन में समा गया जहाँ फटी and was थी buried alive. और जिंदा दफन हो गया। When the Sibu saw that, he was shocked. और शिबू ने जब इसको देखा तो वो सदमे में रह गया। And also he saw from every house people were screaming and running out of their और houses. सब जगह वो देख रहा था लोग घरों में और सड़कों पे चिल्ला रहे थे और करा रहे थे भूकंप के कारण। Many were bleeding. और बहुत से लोगों का खून बह रहा था Many dead bodies. और बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी भूकंप के कारण। Suddenly he heard a crumbling noise behind him. और फिर वहां पर एक बड़ी भयानक एक आवाज आने लगी A crumbling and tumbling noise behind him. और वहां पे क्रम्बलिंग से एक आवाज आने लगी He turned back and saw और उस आवाज को उसने मुड़ के देखा that fort completely destroyed. और जिस किले पे ये चढ़ा था वो किला नेस्तो नाबूद होके जमीन पे मिल गया। An hour before everything was peaceful. और कुछ समय घंटे पहले सब कुछ अच्छा था, Everything was quiet. सब कुछ शांत था। Sudden destruction made that city to mourn. अचानक भयानक भूकंप का नाश आया और वो शहर तबाही की A कगार पर। sudden destruction made that city to mourn. एक अचानक नाश करने वाला भूकंप उस शहर को तहस नहस कर And दिया। Sibu says और शिबू ने it कहा was a great escape to him. मेरे लिए एक बहुत बड़ा बचाव हुआ। In the same manner, the second coming of Jesus Christ will occur. ऐसे ही रीति से यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। A labor pain comes suddenly upon a pregnant woman. जब स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, जो लेबर पेन होती है, पीड़ाएं होती हैं, उठती हैं अचानक से। In the same manner, the second coming of Jesus Christ इसी will रीति occur. से यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। So be prepared to meet the Lord. इसलिए तैयार रहे अपने प्रभु से मिलने के लिए। If his second coming, if the rapture delays, यदि रैप्चर का यीशु मसीह का आगमन डिले होता है, if it God's will, यदि परमेश्वर की इच्छा है, I will come again. मैं आपके स्थान में पुनः दोबारा आऊंगा। If not, यदि नहीं, I want to see you all there on the other shore. मैं आप में से हर एक जन को स्थान पे देखना मांगता As Pastor Amit was worshiping here, हूं। और जब पास्टर अमित यहाँ पे आराधना करा रहे थे, we'll be worshiping Him 24 hours a day, 365 days a year. और हम 365 दिन और 24 घंटे लगातार जब आराधना हो रहे And हैं, the last thing I want to tell to you is this, so that we are going to stand up and we are going to hear that. और अंतिम बात जो आपको बताऊंगा फिर हम खड़े होंगे और सुनेंगे। We are all of us, please stand up in your place and you are going to hear the last words. आप अपने स्थानों में मेहरबानी से खड़े हो जाएं और इस अंतिम शब्द को आप सुने, Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। Beloved, if the second coming of Jesus Christ is delayed, if the second coming of Jesus Christ is delayed, मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में देरी होती है, you should not forget these three phrases which I am going to tell you now. ये 3 फ्रेजेस को आप कभी भी ना भूलें जो अब मैं आपको बताऊं। If his second coming, if that rapture is delayed, यदि रैप्चर में देरी होती है, until you go to your tomb, जब तक आप अपनी कब्र में ना जाएं, you should not forget these three phrases. और ये 3 वाक्यांश को कभी ना भूलें। First one, पहला, according to 2 Peter chapter 3 verse 12. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 आयत। Chapter 3 verse 12. दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 आयत। Eagerly expect his second coming. उसके आगमन की बाट हम जोते रहे। Every day expect his second coming. हर दिन उसके आगमन की बाट जोते रहे। Day after day, night after night, expect his second coming. दिन प्रतिदिन, रात बर रात उसके आगमन की बाट जोते रहे। That is the first
first phrase. और ये पहला वाक्यांश। Second phrase. दूसरा वाक्यांश। According to 2 Peter chapter 3 verse 14. और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत के अनुसार। Be diligent. और बिल्कुल वहां पर बुद्धिमान बने। Live a holy life. एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। A life without spot and without ऐसा blame. जीवन जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री और कोई ऐब ना हो हमारे जीवन के अंदर। Be diligent. और बिल्कुल सावधानी और बुद्धिमत्ता का जीवन जिए। Live a holy life. एक पवित्र जीवन जिए Without spot and without जिसमें कोई blame. दाग ना हो और कोई धब्बे ना हो हमारी जिंदगी में। Third and final phrase. तीसरा और अंतिम वाक्यांश। According to 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत के अनुसार। But grow. उन्नति करते जाएं। Grow in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के अनुग्रह में उन्नति करते जाएं। And grow in the knowledge of our Lord and Savior और Jesus हमारे प्रभु Christ. यीशु मसीह उद्धारकर्ता के ज्ञान में उन्नति करते जाएं। Read the Bible daily. रात दिन बाइबल को रोज पढ़ें। Pray without ceasing. प्रार्थना करते रहें, लगातार मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहें। And live a witnessing life. एक गवाही वाला जीवन जिए। Listen carefully. ध्यान से सुने। Every day expect His second coming. हर दिन उसके द्वितीय आगमन की आशा रखें। Every day live a spotless and blameless life. हर एक दिन बिना ऐब, बिना दाग और धब्बे वाला जीवन जिए। Every day grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. हर दिन प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, बुद्धि में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। My beloved, मेरे प्रियो, I want to ask you a question. एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। If you die tonight, यदि आज रात्रि में हम मर गए, where will you spend your eternity? हम अपना अनंतकालीन जीवन कहाँ बिताएंगे? If you are going to die tonight, यदि आज रात्रि में हम मर गए, where will you spend your हम eternity? अपना अनंतकालीन कहाँ बिताएंगे? In heaven or hell? स्वर्ग में या नरक में? Shall we all close our eyes? हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। Whether your name is written in that book of life, और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं? all eyes are closed. और सारी आंखें बंद हो जाएं। A very important moment. बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है The प्रियो। Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर The है। fire of God is here. परमेश्वर की आग यहाँ पर है। The resurrected Lord is here, very closer to you. पुनरुत्थित परमेश्वर हमारे बिल्कुल नजदीक में है। All those who want your name to be written in the book of life, you can raise your hand. I want हर to see your एक hands. जन जो अपना नाम जीवन की पुस्तक में चाहता है, अपने हाथों को उठा ले। All those names want to be written in the book of life, you can please raise your hand. हर एक जन जो अपना नाम जीवन की पुस्तक में चाहता है, अपने हाथों को उठा ले। Heaven is happy to see so many hands. स्वर्ग बहुत खुश है इतने सारे हाथों को देखकर। Jesus is happy to see many hands raised यीशु मसीह up. बहुत खुश है इन हाथों को ऊपर देखते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Beloved, if your name is not found in the book of life, मेरे प्रियो, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, you cannot enter into eternal हम life. स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And repeat this prayer after me. और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। Repeat this prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। Jesus didn't feel shy to die for you on the cross. यदि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे मरने में हमारे कारण शर्मिंदगी या लज्जा महसूस नहीं किया, So you don't feel shy to confess this prayer. तो आपको भी शर्मिंदगी नहीं आना चाहिए इस प्रार्थना को अंगीकार करने में। You open your mouth and loudly you should confess. अपने मुखों को खोलें और जोर से अंगीकार करें। And when you finish this prayer, और जब इस प्रार्थना को समाप्त करें, immediately Jesus will write your name in the book of life. यीशु मसीह जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखेगा। मेरे प्रियो, I have seen thousands and thousands of names have been written in the book of life when they confess this prayer. और जब इस प्रार्थना को लोग अंगीकार किए, हजारों हजारों नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए मैंने देखा। Come on, let us pray आइए हम and repeat this prayer after us. और मेरे बाद प्रार्थना को दोहराएं। Dear Father God, प्रिय परमेश्वर पिता, all of you, हर एक जन बोले, dear Father God, प्रिय परमेश्वर पिता, I love you and thank you for sending your son for me. हम आपसे प्रेम करते हो, धन्यवाद देते कि आपने अपना बेटा हमारे लिए भेजा। Come on. Tonight I surrender all of mine. और आज रात्रि में मैं अपना सब कुछ समर्पित करता। Have mercy on me मुझ पर दया कर and cleanse me with the blood of your son and my savior Jesus Christ. अपने बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध कर।
cleanse me with the blood of your Son. अपने बेटे के लहू से हमें शुद्ध कर। Father God, पिता परमेश्वर, I have decided to live holy. मैंने निर्णय लिया है कि पवित्र जीवन जीऊंगा, To forgive everyone. कि हर एक को क्षमा करूंगा, To help the poor. और गरीबों की सहायता करूंगा, And to preach the gospel to others. और सुसमाचार दूसरों को प्रचार करूंगा। Fill me with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर प्रभु, Fill me with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर, So that I will fulfill all my decisions. ताकि मैं अपने सारे निर्णय को पूर्ण कर सकूं, So that I will fulfill all my decisions. ताकि मैं अपने सारे निर्णय को पूर्ण कर सकूं। Father God, पिता परमेश्वर, I plead unto you. मैं तुझसे विनती करता हूँ, I beg unto you मैं तुझसे गिड़गिड़ाता हूँ, to write my name in the book of life. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले प्रभु, To write my name in the book of life. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले प्रभु। Oh, I cry unto you. मैं पुकारता गिड़गिड़ाता प्रभु, Oh, I cry unto you. मैं पुकारता प्रभु आपको, To write my name in the book of life. जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख ले प्रभु, So that I can inherit the eternal life. ताकि मैं अनंतकालीन जीवन को प्राप्त कर जाऊं, So that I can inherit eternal life. ताकि मैं अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर जाऊं। In Jesus' name I ask this prayer. यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता, And heaven has said, Amen, Amen.